اللہ اکبر اللہ. پھر قاری بنیامین عابد صاحب اللہ ان کی آواز میں مزید تاثیر پیدا فرمائے. سنایا کرتے ہیں اللہ مومن رمضان کا ماہ مبارک آ گیا. مومن ہاں مومن رمضان کا ماہ مبارک آ گیا. مٹ گئی تاریکیاں اور نور چھا گیا. مومن رمضان کا ماہ مبارک آ گیا. اللہ روزہ دار مومنوں شیار ہو جاؤ. خبردار آسیو تیار ہو جاؤ. کیوں؟ نیکیوں کا موسم بہار آ گیا. مومن رمضان کا ماہ مبارک آ گیا. قاری عبدالحفیظ صاحب میں ان کو بھی بہت قسمت سے جو میں تیرا زمانہ پاتا آقا. قسمت سے جو میں تیرا زمانہ پاتا آقا. جان تو کیا چیز ہے جان تو کیا چیز ہے سب کچھ میں لٹاتا آقا. تو جو میرے گھر اور میری مسجد آیا ہوتا. تو جو میرے گھر اور میری مسجد آیا ہوتا. کون آیا ہے میں کس کو بتاتا آقا. ہائے ہائے میرے بھائیو میرے ویرو. اللہ فرمائے دے سونے نبی پاک کے بارے میں فرمائے والقلم وما یسطرون. قاری خالد مجاہد صاحب میں صدقے جاواں قربان جاواں. او لوگو کون میرا کملی والا. ساری دنیا تو عالم میرا کملی والا. مالک کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. قاری ہارون یاسر بکوی صاحب بابا جی آندے نے مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے. جتھے ٹور داریا لوگوں کونین دوالی ہے. علیم بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. رائل نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک علیم. آپ دیکھ رہے ہیں رائل نیوز. ناظرین کرام آپ نے جتنے بھی میرے پروگرام دیکھے ہیں آپ نے کافی میں نے لوگ آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں جن کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے. ایکٹر آتے ہیں سنگر آتے ہیں لیکن آج جو میں لے کے آیا ہوں وہ آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے اور آپ ایک دفعہ سوچیں گے کہ یار ایک آنکھوں سے محروم انسان بھی کیا اتنا رتبہ اتنا مقام حاصل کر سکتا ہے. جو کہ میرے ساتھ آج موجود ہیں قاری سلیمان ربانی صاحب حفیظ اللہ تعالیٰ جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کے بہت سے انٹرویو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. آج مسجد ستار سکیاں پل میں قاری سلیمان ربانی صاحب ملے ہیں تو ہم ان سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں جو کہ کافی علماء حضرات کی جو ہے کہ آواز میں بیان کرتے ہیں جن کو اللہ پاک نے آنکھوں سے تو محروم ہے لیکن اللہ پاک نے ان کے دل میں ان کے سینے میں قرآن رکھا ہے اور اللہ پاک نے انہیں ٹیلنٹ بھی دیا ہے جو کہ ہر علماء کے آواز میں ٹیلنٹ میں جو ہے کہ بیان کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ کا؟ جی علیم بھائی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ ٹھیک ہیں؟ صاحب آپ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ جمعہ المبارک کا جو دن ہوتا ہے ان کی تیاری کیسے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ جو کچھ ہے سب سے پہلے اللہ کا فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے.
अल्लाह की रहमत और अल्लाह के फजल व करम के बाद ये मेरे साथ मेरे वालिदैन की और मेरे असातिज़ा की दुआएं हैं। और उसके बाद मेरे पास मोबाइल है अलीम भाई, मोबाइल में मैंने मेमोरी कार्ड रखा हुआ है। अच्छा जी, वो मेमोरी कार्ड में मैंने रिकॉर्डिंग में किताबें रखी हैं रिकॉर्डिंग में। जी, मुख्तलिफ़ किताबें हैं, वो अरबी इबारत भी है और उर्दू उसका तर्जमा भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये रिकॉर्डिंग सुनता हूँ और किताबें भी ऐसी हैं बाकायदा तहकीक के साथ कि कौन सी हदीस सही है कौन सी ज़ईफ़ है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा उसमें मौजूद है। तो मैं ये रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, मोबाइल से तैयारी करता हूँ। अच्छा कारी साहब, काफ़ी लोग हैरान होते हैं, परेशान होते हैं कि अल्लाह पाक ने कारी साहब को आंखें नहीं दी, आंखों से महरूम है, लेकिन अल्लाह पाक ने इनके सीने में कुरान पाक रखा है, जो कि आप लोगों के काफ़ी इलाकों में जाकर घरों में भी जाते हैं, मस्जिदों में भी जाते हैं, तबलीग करते हैं, लोगों को जो है कि आप कुरान पाक सुनाते हैं लोगों को, यानी कि आप एक जन्नत दिखा रहे होते हैं। तो कारी साहब, आपने जब हिफ़्ज़ किया तो वो सफ़र कैसा रहा है आपका? जी, सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक का जो सफ़र है ये सबसे आला और अफजल सफ़र है, सबसे बेहतरीन सफ़र वो दीन का सफ़र है। तो मुश्किलात तो फिर आती हैं, बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह ने अपनी रहमत की, मुझे अपने कुरान के लिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रमान के लिए, मिंबर मुस्तफ़ा के लिए अल्लाह ने पसंद फरमाया, ये बस अल्लाह की रहमत है। अच्छा, आज मैं सबसे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मुझे कारी बिन्यामिन आबद साहब, जो कि मैं उनका बहुत फ़ैन भी हूँ, तो उनकी आवाज़ में छोटा सा हमें तिलावत भी और छोटा सा बयान भी सुनाएं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह में कुर्बान जावां, खजरात तेज़ी वकार तवज्जो कर दे जाना दराव। रमज़ान दा महीना कितनी अज़मत वाला महीना, कितनी शान वाला महीना। अल्लाह अल्लाह माल के कायनात ने फरमाया, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ील कुरान। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। फिर कारी बिन्यामिन आबद साहब, अल्लाह उनकी आवाज़ में मज़ीद तसीर पैदा फरमाए, सुनाया करते हैं। अल्लाह मोमिन रमज़ान का माह मुबारक आ गया, मोमिनो हाँ मोमिनो रमज़ान का माह मुबारक आ गया। मिट गई तरीकियाँ और नूर छा गया, मोमिनो रमज़ान का माह मुबारक आ गया। अल्लाह रोज़ादार मोमिनो शियार हो जाओ, खबरदार आसियो तैयार हो जाओ। क्यों? नेकियों का मौसम बहार आ गया, मोमिनो रमज़ान का माह मुबारक आ गया। आज आप ये महसूस करें कि आज मेरे साथ कारी सुलेमान रब्बानी साहब नहीं बल्कि तमाम उलमा हज़रात मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि उनकी आवाज़, उनकी जो तर्ज़ है, उनका टैलेंट है, वो आप कारी सुलेमान साहब जो है उनके अंदर आप देखेंगे। कारी साहब, इसके अलावा कारी अब्दुल हफीज़ साहब, मैं उनका भी बहुत फ़ैन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह
इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। और अशार हज़रत कारी साहब के ही लिखे हुए कारी साहब पढ़ा करते थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा एक जगह पर, मैंने और कारी साहब ने मिल के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, सारी दुनिया ने सुना, बहुत ज़्यादा ये कलाम वायरल हुआ। किस्मत से जो मैं तेरा ज़माना पाता आका, किस्मत से जो मैं तेरा ज़माना पाता आका, जान तो क्या चीज़ है, जान तो क्या चीज़ है, सब कुछ मैं लुटाता आका। तू जो मेरे घर और मेरी मस्जिद आया होता, तू जो मेरे घर और मेरी मस्जिद आया होता, कौन आया है मैं किस किस को बताता आका। तेरे कारी की आखिरी आरज़ू भी पूरी होती, तेरे कदमों में मैं मर जाता आका। एक और कारी साहब है जिनकी दुनिया पसंद करती है, उनको भी, उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी, तो उनका भी मैं नाम लेना चाहूँगा कि कारी यासीन बलोच साहब। हाय हाय मेरे भाइयों मेरे वीरों, अल्लाह फरमाए दे सोने नबी पाक के बारे में, फरमाया नून वल कलम वमा यस्तुरून। माशाल्लाह क्या बात है। कारी खालिद मुजाहिद साहब। मैं सदके जावा कुर्बान जावा, ओ लोगों कौन मेरा कमली वाला, सारी दुनिया तो आला मेरा कमली वाला। माल के कायनात ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आज प्रोग्राम का अभी हम एंड करते हैं और कारी अल्लामा एहसान अलही ज़हीर से हम एंड करेंगे। तो लास्ट पे कारी अल्लामा एहसान अलही ज़हीर, जो कि एक उनका एक नाम है, दुनिया उन्हें जानती है, दुनिया उन्हें पसंद करती है, तो उनके अंदाज़ में भी एक छोटा सा करके तो एंड करते हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ जब मक्का छोड़ के मदीना जाने लगे, हिजरत करके मदीना जाने लगे, अपने भाई आ गए, कहा अब्दुर्रहमान कहाँ जाते हो, कहा मदीने वाले के पास जाता हूँ। कहा अब्दुर्रहमान जाना है तो अकेले जाओ, ये बेटा हमारा है, बेटा छीन लिया। ससुराल वाले आ गए, कहा अब्दुर्रहमान कहाँ जाते हो, कहा मदीने वाले के पास, कहा ये बेटी हमारी है, बेटी भी छीन ली, माल भी छीन लिया, बेटा भी छीन लिया, बीवी भी छीन ली। अब्दुर्रहमान बिन औफ जब मदीना पहुँचे, कौनैन के ताजदार ने ज़ोहर की नमाज का सलाम फेरा, पलट कर देखा तो अब्दुर्रहमान बिन औफ खड़े हैं। कहा अब्दुर्रहमान कहाँ आए, कैसे आए? कहा आका दीन मैं सब कुछ लुटा के आया हूँ, दीन बचा के आया हूँ। कौनैन के ताजदार ने कहा अब्दुर्रहमान कुछ नहीं, जन्नत पा के आ गए। अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला नाजरीन सामीन का प्यार कबूल फरमाए। रॉयल न्यूज़ माशाल्लाह बहुत अच्छा चैनल है, इसको देखना चाहिए। अल्लाह ताला इसको मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। कारी नईम साहब जो हैं वो आवाम की यहाँ पे खिदमत भी कर रहे हैं, सहरी अफ्तारी तकसीम खुद कर रहे होते हैं, तो मस्जिद सतार के इमाम भी हैं। छोटी सी फरमाइश लेके आ गए हैं कारी हारून यासर बगवी साहब की, उनकी फरमाइश पूरी करनी चाहिए। वैसे जी पूरी तो करनी चाहिए, लेकिन लंबा होता जा रहा है। वैसे तो बरादर अकबर वो मेरे मोहसन हैं, कारी मोहम्मद हारून यासर बगवी साहब, उनकी मेरे साथ बहुत मोहब्बत है।
बल्कि मैं अक्सर कहा करता हूँ हारून यासिर बगवी साहब मेरे दाएं बाजू हैं। अल्लाह ताला ने उनको जो इज़्ज़त दी है, वक़ार दिया है, अल्लाह ताला ने हज़रत बगवी साहब को जो शान दी है, उसके पीछे बहुत राज हैं। ताया जी हमारी जमात के बहुत प्यारे ख़तीब हैं हारून यासिर बगवी साहब, जिनके टाउन में हमारा मरकज़ है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। बहुत अजीम हस्ती हैं। तो वो अजीम हस्ती हैं हज़रत बगवी साहब जो 3 दफ़ा मुझे मक्का मदीना आप अपने साथ लेके गए हैं, अपने साथ ही रखा है। अल्लाह ताला उनकी आवाज़ में, उनके इखलास में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। तो चलो मैं कारी नईम साहब का हुक्म नहीं मोड़ता। वो फिर जब अल्लाह जानता पढ़ा करते थे हज़रत बगवी साहब, फिर कौन बन सकता है। बाबा जी आंदे ने मक्के ते मदीने दी क्या बात निराली है, जिथे टुरदा रहा लोगों कौन दवाली है। अलीम भाई हम बैतुल्ला में बैठे हुए थे, तो आधी रात का टाइम था। मुझे बगवी साहब कहने लगे हाफिज़ साहब आप पाकिस्तान में तो बैतुल्ला के बहुत अशार सुनाते हैं, तो आज बैतुल्ला के सामने हम बैठे हुए हैं, तो बैतुल्ला के बारे में कुछ सुनाओ। मैंने कहा हाफिज़ साहब सुनो। कहते सुनाओ। मैंने कहा सुनो हाफिज़ जी। है फरमान कलामुल्ला पहला घर है बैतुल्ला, उस धरती दे के आ कहने ओ ते कर्मा वाली। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया कारी साहब। जो नाज़रीन देख रहे हैं उनको ज़रा आप अपने मदरसे के बारे में भी बताएं, किस जगह पे है, तो कितने बच्चे हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं आपके पास। जी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ खुड़ियाँ ख़ास ज़िला कसूर में है, जहाँ पर टूल प्लाजा हुआ करता था, वहाँ पर हमारा मरकज़ है। जामे मस्जिद मदीना अहले हदीस मरकज़ अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अनकरीब हम वहाँ पर हिफ़्ज़ की क्लास शुरू करने वाले हैं। दुआ फरमाए, अल्लाह हमारी मदद फरमाए। अच्छा कारी साहब, नेक्स्ट जो हमारी मुलाकात होगी वो इंशाअल्लाह आपके मदरसे में होगी। वहाँ पे हम आएंगे, वहाँ पे हम विज़िट भी करेंगे और आपसे बात भी करेंगे। तो कारी साहब के पास टाइम भी शॉर्ट है, क्योंकि जुमा भी जो है कि पढ़ाया, बयान जो है कि वो किया है, और रोज़ा है कारी साहब का। तो मैं नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा प्रोग्राम को लंबा करूं। आपने बहुत से प्रोग्राम देखे होंगे, बहुत से टैलेंट देखे होंगे, जो कि आपने गुलूकार, सिंगर, जो कि जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं होता हमें देखने का, आप वो चीज़ें देखते हैं। आज हमने आपको काफ़ी उलमा हज़रात की आवाज़ में, उनके टैलेंट में हमने आपको कारी साहब ने सुनाया है, और कुरान पाक भी आपको सुनाया है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, आप दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने मुसलमान होने का सबूत भी ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ रहिए। अपने मेज़बान मलक अलीम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।